Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dank and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी हाजिर हैं देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विश्लेषक राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक। Thank you, Manoj. Yes, the headlines. At the stock markets, Sensex loses 338 points. Nifty drops 124 points. Rupee gains 7 paise against the dollar. Swiss brokerage Credit Suisse lowers India's nominal GDP growth forecast by 150 to 300 points to 13 to 14% for the current financial year. And Brent crude oil futures slip $1.40 to $65.26 a barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में दिखी गिरावट। सेंसेक्स 338 अंक गिरा, निफ्टी 124 अंक नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 7 पैसे मजबूत। क्रेडिट स्विस ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में अपने पूर्व के अनुमान में किया संशोधन। 150 से 300 अंकों की कटौती करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए 13 से 14% वृद्धि दर रहने की संभावना जताई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $1.40 घटकर $65.26 प्रति बैरल पर आई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 338 अंक यानी 0.7% घटकर 49,565 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 124 अंक यानी 0.8% कम होकर 14,906 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों का आज अलग अलग रुख दिखा है। एक और बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% घाटे के साथ बंद हुआ। वहीं निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 338 points or 0.7% to close at 49,565 today. Nifty at the National Stock Exchange slid 124 points or 0.8% to end at 14,906. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index shed 0.2%, but the Small Cap Index gained 0.2%. Among the sectoral indices on the BSE, the Metal Index led the fall, slumping 3.6%. The Oil and Gas Index slid 1.6%. The Basic Material Index slipped 1.1%. Bankex lost 1%. Energy and the Utilities indices dropped 0.8%, and the Finance, the FMCG and the Telecom indices fell 0.7% each. Among the advancing indices, the Tech Index rose 0.9%, the Capital Goods Index gained 0.2%, and the Consumer Durables Index moved up 0.1%. Welcome, Rajiv, to the show. Thanks. And, there has been a slip yet again, and now the market slipped by 0.7% and closed at 49,000 plus today. What is the reason? Some may say, 40,000 plus, beyond 45,000, still not too bad. How do you view this overall, and what has led to this slip of 0.7%, losing 338 points? So, market has done extremely well in the last couple of days. So, the corrections are pretty much normal course of a market. There has been a profit booking if you look at from some of the foreign investors. Yes. And the global markets have been slightly skittish in the last few days. So, while we were trading today, Dow Jones Industrial Average futures, which are traded when the US market has not opened, they get traded in other parts of the world. They were quoting down with a cut of around 160 points. So there is expectation that tonight when US market opens for trade, we might see some cut in the US market. So when the mother market is expected to fall, some of the other Asian markets, including India,
tend to fall before that, you know. So today there is an expectation that US probably will fall, and ahead of that we have seen supply coming up and some profit booking happening in the Asian markets. And India, we have received good amount of flow in last 4-5 months. A part of it has been taken off the table by some of the investors. राजीव, यदि हम बाजार की गतिविधि पर ध्यान दें तो कल भी हमने देखा था कि जो छोटी और मझोली कंपनियां हैं उनमें निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही थी। आज भी कुल मिलाकर यदि हम छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन देखें तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। क्या मुख्य कारण नजर आ रहे हैं आपको इन छोटी और मझोली कंपनियों में निवेशकों के आकर्षण के? देखिए, जो अगर आप देखेंगे कि जो अर्निंग्स आई हैं उसमें कहीं जो वैसे तो वो Q4 के रिजल्ट हैं जो इंक्लूड नहीं करते कि लॉकडाउन का पीरियड, जो मिनी लॉकडाउन काफी जगह हो रखे हैं, लेकिन जो उनका प्रदर्शन रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन, टॉप लाइन ग्रोथ, वो अच्छा रहा है। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा, ड्यूरिंग दी जो पीरियड होता है जिसमें आप देखते हैं कि लार्ज कैप काफी बढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में, तो वैल्यूएशन कैचअप मिड कैप्स में कर रहा है। तो उसकी वजह से जो छोटे निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट, घरेलू निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर है, उनका इंटरेस्ट ये स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट अब वो कितने दिन कर सकते हैं अगर बाजार घट रहा, वो देखने की बात होगी। बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लार्ज कैप डोंट परफॉर्म और थोड़ा आप देखिए कंटिन्यूसली मिड कैप आउट परफॉर्म करें। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी करेक्शन आ रहा है तो ये मिड कैप में भी यहाँ करेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। When we talked about the global factors, you mentioned that not the ripple effect, but it's because the markets were sensitizing a fall in the US. That's why this happened. Now let's come to the domestic scenario, Rajiv. We know that COVID-19 has caused a lot of disruption to businesses. Now the government is aiming to start the divestment process. In fact, the second phase of divestment has started. Do you see the effect of that also somewhere in some stocks? See, as far as divestment is concerned, I think the biggest divestment is that of BPCL, because that is one which is going to re-rate the sector. Other divestment, if they, probably they will get impacted because of the this COVID and other issues. But according to me, that is the biggest disinvestment which needs to be watched, is that because one, it will mark the movement of the government out of the one particular sector, and there are other listed companies. There will be a re-rating of those companies in hope that some of the money which has gone out will come into them. So it's something probably might get impacted for some time, but that is something when happens probably will be a big kicker to the market, and especially the Air India one. Once that is done, that will be a big booster for the sentiment for the market. राजीव, यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो आज मेटल सेक्टर में अपेक्षाकृत सबसे अधिक गिरावट हुई है, 3.5% से अधिक की गिरावट हुई। क्या इसे हम ये जोड़कर देखें कि चीन में जो कदम यानी उठाए गए हैं, या उसने बयान दिया है कि कमोडिटी सेक्टर में जो कीमतें हैं उन पर नजर रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए वो समुचित कदम उठाएगा, क्या ये उसका असर है या कोई अन्य कारक? मनोज जी, इसमें दो चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा हमको। वो है कि पिछले अगर 2-2.5 महीने देखें तो मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक पर से द टॉप परफॉर्मर, मतलब कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं है, उनके भाव भी 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना हो गए हैं पिछले 3-4 महीने में। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है विद अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। जब किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है तो उसके बाद वो एक सेक्टर ऐसा बन जाता है कि उसमें अगर जरा सी कोई स्टेटमेंट भी आती, जैसे आपने भी ये चाइनीज इशू का मेंशन करा, वो है। सेकेंडली, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन बहुत हुई है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े थे मेटल्स में। नाउ जैसे जैसे वो डिसरप्शन ठीक होती रहेगी और जो सप्लाई है वो नॉर्मलाइज होती रहेगी, वैसे वैसे थोड़े से जो कमोडिटी प्राइस है वो कम आने चाहिए। आई थिंक इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट, चाइना प्लस एक्सपेक्टेशन दैट कुछ महीनों में हम देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो गए हैं,
उसके चलते मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ी सी मेटल स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आई है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन स्टेबल करने के बाद फिर दोबारा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम देखें, बिकॉज ये क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली इतनी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई जितने की प्राइसेस बढ़ गए हैं मेटल्स के। बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है मेटल प्राइसेस में, एक्सेप्ट अगर आप कॉपर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, उतना तेजी से सस्टेन करना आई थिंक डाउटफुल। सो दिस इज वन सेक्टर जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, आने वाले समय में आ सकती है मेरे उम्मीद में। राजीव, यदि हम आज की ही गतिविधि पर ध्यान दें तो ऑयल एंड गैस है वो भी थोड़ा सा नीचे गिरा है। इसका वर्तमान के साथ साथ भविष्य यानी तेल के दामों में गिरावट जो ताजा शुरू हुई है उसका असर है, और जो तेल मार्केटिंग हमारी कंपनियां हैं उनका भविष्य कैसा रहेगा, जो तेल के दाम में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं उनके मद्देनजर? देखिए, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो वो हमारी जो लिस्टेड कंपनी है तेल सेक्टर में वो बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है, उनको वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा मिला नहीं है। उसमें एक री रेटिंग का दौर आएगा आफ्टर द बीपीसीएल इज डाइवेस्टेड। तो जहां तक शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो थोड़ा करेक्ट करें, बिकॉज ग्लोबल मार्केट करेक्ट करनी है, ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है कि आप देखेंगे नीचे घट जाएगा। लेकिन वो एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे एक जिसे कहते हैं कि एक फंडामेंटल री रेटिंग बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट के आसपास होगी। थोड़े दिन बाद 2 महीने आप कह सकते हैं शायद ये मार्केट के साथ चलें, घटते रहें, लेकिन एक वो क्षेत्र है जहां पे नजर रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में आज अगर जैसे $1.5 आपने भी पढ़ा था कि $1.5 घट गया ऑयल, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा कुछ उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है जो है कई कंपनीज के बहुत बढ़िया रहे हैं, मच हायर देन द एक्सपेक्टेशन रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक क्षेत्र है जो आने वाले समय में निवेशकों को नजर रखनी चाहिए, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है। यानी ये परिवर्तन की आपने चर्चा की, किस तरह का परिवर्तन, उसके आयाम कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब एक कंपनी प्राइवेट सेक्टर, एक सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाती है तो जो बाकी, मान लीजिए अगर आज 10 की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड होती है तो जो बाकी कंपनीज हैं उसकी एक वैल्यूएशन निकल के आएगी सेलिंग के टाइम पे। वो वैल्यूएशन जो होगी वो इम्पैक्ट करेगी बाकी कंपनीज के वैल्यूएशंस को भी। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीपीसीएल की डिवेस्टमेंट हो 25 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे और आप देखेंगे बाकी एचपीसीएल और आईओसी जो है वो 11 या 12 के मल्टीपल पर ही ट्रेड करें, तो उनका एक मल्टीपल को पुश मिल सकता है। वो मल्टीपल का पुश मिलना ही, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल का जो पुश मिलना ही है, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ कि स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस है। सेकेंडली, जब ये हो जाएगा तो जो पॉलिसी रिजीम है कि जैसे अब हमारे देश में काफी टाइम से आप देखते हैं कि जैसे जैसे ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, पंप पे पेट्रोल प्राइस वैसे बढ़ते हैं, तो वो सारे जो इंस्टीट्यूशनल चेन है, एक बार प्राइवेट सेक्टर उसमें आ जाता है, वो भी डाइवेस्टमेंट के थ्रू, तो उसके बाद वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं चेंजेस। सो दैट इज अ रीजन जो मेरे को जो लगता है कि एक चेंज इन वैल्यूएशन आएगा मोर देन दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी, कोई बहुत ज्यादा कुछ बढ़ेगी नहीं या घटेगी नहीं, लेकिन वैल्यूएशन अगर आज आप 10 की पी देते हैं तो हो सकता है 15 की पी मिलने लग जाए ऑन एन एवरेज उनको। वो एक चेंज उस हिसाब से हो सकता है। Rajiv, the $1 million question would be, is this the right time to invest in shares? And also generally it's considered that mid-cap and small-cap offer short-term gain, and you invest in the big stocks for a long-term investment. What are your views on this? There are two parts to it. One, when you ask that if it's the right time to invest, it's always the right time to invest. It's always a good time to invest. The question is, where are you investing? And secondly, are you actually investing or are you trading? See, most of the people end up doing a mistake is that they think that they are investing, but they are actually trying to trade into market. If somebody thinks tomorrow is going to buy a stock and wants to book a profit in 2 months or 3 months, it's not investing, it's trading. Right. It's only that your horizon, instead of being a day or 2 or 3 or 4 days, is just 3-4 months. So investing, you can invest any time. One, where are you investing? You actually don't invest in stock price,
you invest in businesses. So what business you are investing? Which brings me to the point, to the answer to your question is, yes, it's a good time to invest. There are certain sectors where, the growth in coming years is going to be good. The management quality has decent number of companies where the growth is there. You can buy that, or even that way you can buy a index ETF, not a bad time to invest. But when you are investing, please have a long-term horizon. Coming to your second part of the question about mid and small caps, if those are businesses, rather than dividing them on the basis of their capitalization, if you look at the business, a small and mid cap company has a probability of higher growth because they are getting, because the balance sheet size is small. But at the same time, there is a problem in the particular, industry. Then those smaller companies, their balance sheet tends to come under pressure a lot. For example, last year when there was all this, countrywide lockdown laws, the smaller companies with a high debt, and most of the large mid-cap companies do have an element of debt in them. Those are the ones which underperform for a very long period of time, because it is very tough for them to sustain their margins, to stay profitable at the same level as they were before this lockdown happened. So while small and mid cap might give you good return, but it's a risky. One should understand what business one is investing, at what valuation was investing, and that also even in that case, your time horizon should be far longer. I mean, there are some stocks which did extremely well in 2018 when mid and small cap did extremely well, and in last case they're quoting at, probably from their highs, they're just quoting at not even 40% of their valuation or 30% of the valuation which they were in 2018. I mean, and in fact, the companies, in terms of numbers and all, they are better than what they were in 2018. So, one has to be very careful. Look at a business, look at the management, look at everything, do a good amount of research before buying into any mid and small cap. And if you don't have time to do research or don't have the skill set to do research, best is to go through a mutual fund route. And because the index fund offer a cheaper option to invest in equity, I think that's the best route for retail investors, rather than getting, blown by what's being said in media or what, index movement every day. People tend to become bullish towards the fag front of a bull run. Yeah. So that is why it's very important one should know that if I don't know how to pick a stock, let somebody else professional do it. Right. I think you explained beautifully about trading and investment, isn't it, Manoj? बहुत अच्छे से समझाया है राजीव जी ने बहुत अच्छे तरीके से रोचक अंदाज में श्रोताओं को ये जानकारी दी कि निवेश में और ट्रेडिंग करने में क्या अंतर है। हमें उम्मीद है कि श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। राजीव, यहीं पर थोड़ा सा और हम समझना चाहेंगे कि वर्तमान जो कह लें बाजार में कारोबार है, जो परिस्थितियां हैं कोविड के मद्देनजर, उनमें कौन से क्षेत्र ऐसे आपको लग रहा है, सेक्टर कौन सा लग रहा है जहां अपेक्षाकृत अपने निवेश पर उन्हें बेहतर लाभ मिल सकेगा? रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे जी मनोज जी, तो क्या है कि देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। एक्चुअली कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कुछ दिनों पहले PLI स्कीम आई है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। वो ऐसे, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हों या ऑटो के कुछ यूनिट हो और कुछ है, वो जो क्षेत्र है जहाँ पे PLI आई है, जहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन विल बी द फोकस, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। पर अगेन, जैसे कि अभी बात हुई कि थोड़ा सा इसको निवेश करें और दूसरा कंपनी को सोच कर देख लें, जरा अच्छे से रिसर्च कर लें और भाव में मत बहें कि आज इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर है तो मेरा स्टॉक ने परफॉर्म क्यों नहीं करा, उस टाइप का। और एक जो क्षेत्र है जो मुझे लगता है, एज अ डिस्क्लेमर, मेरा अपना एक्सपोजर भी है उसमें, इट्स फाइनेंशियल्स, बिकॉज वो थोड़ा सा अभी पीछे लेग आउट हुआ है, बिकॉज कि ये उम्मीद है कि ये ड्यूरिंग दिस लास्ट 1.5 मंथ जो हुआ है उसके चलते थोड़ा टाइम अंडर परफॉर्म, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है शायद बैंकों को थोड़ा सा आगे है। बट ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड वो एक ऐसा क्षेत्र है कि वो जब रिकवरी शुरू होगी तो वो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ग्रेजुअली उसमें देख सकते हैं कौन से अच्छे बैंक हैं या NBFCs हैं, लार्ज NBFCs रिप्यूटेड, जिनकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट लॉकडाउन बेटर रही है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह। तो उसको देख के वो क्षेत्र है जिसमें निवेशक
देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे मजबूत हुआ, 73 रुपए 10 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। चलें एशियाई बाजारों की ओर। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक से संबंधित जानकारियों से संकेत पाकर एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा है। एक और बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। हांगकांग का हिंग सेंग 0.5% लुढ़क गया। उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की गिरावट हुई। दूसरी तरफ निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई सूचकांक 0.2% ऊपर आकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में मामूली बढ़त हुई है। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो जापान में इस वर्ष अप्रैल महीने में निर्यात 38% बढ़ गया। जापान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में निर्यात में इस बार अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इस बीच चीन ने मई महीने के लिए ऋण लेने के लिए मुख्य नीतिगत दर को पिछले स्तर पर बनाए रखने की जानकारी दी है। 1 वर्षीय ऋण पर ब्याज दर 3.85% पहले की तरह बनी रहेगी। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन के FTSE 100 में 0.2% की गिरावट थी। जर्मनी का डेक्स मामूली नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से फ्रांस का CAC 40 0.1% ऊपर चल रहा था। And now let's take a look at the U.S. markets. Well, the U.S. markets ended lower yesterday as minutes from the last U.S. Federal Reserve meeting showed participants agreed the U.S. economy remained far from the central bank's goals. U.S. Treasury yields and the dollar index jumped as the minutes also showed Fed policymakers hinted at a possible shift in future policy. Minutes of the U.S. Central Bank's April 27-28 meeting said a number of Fed policymakers thought that if the economy continued rapid progress, it would be appropriate at some point in upcoming meetings to begin discussing tapering government bond purchases. So the Dow Jones Industrial Average fell 165 points or 0.5% to close at 33,896. The S&P 500 lost 12 points or 0.3% to end at 4,116. And the Nasdaq Composite dropped just 4 points to 13,300. अब हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे राजीव अमेरिका की ओर, और ये जो कहा गया है यानी संकेत दिए गए हैं कि टेपरिंग की जाएगी सरकारी जो बॉन्ड है उसकी खरीदने की जो योजना है उसमें, इसका क्या तात्पर्य होगा और क्या प्रभाव हमारे यानी यहाँ भी दिख सकता है वैश्विक बाजारों के साथ? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसकी उम्मीद थी प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आएगा, बट गिवन कि द फैक्ट कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, लगता है कि थोड़ा पहले होगा। एंड अगर ये ऐसा होता है, अगर वो जो कह रहे हैं, अभी एक उम्मीद है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ी है वो डिमांड नहीं, वो उसका रीजन है सप्लाई कंस्ट्रेंट। उसकी वजह से यूएस में भी इन्फ्लेशन नंबर जो है वो बेटर आया, बेटर देन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ दी यूएस फेड। तो वो एक अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकल के वापस मदर मार्केट जो वो यूएस मार्केट जो उसमें जाएगा, एंड वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड देन वी कैन सी अ डिसेंट करेक्शन हमारे यहाँ पे बाकी एशियाई बाजारों में और बाकी एसेट क्लासेस में भी हो सकती है, एक्सेप्ट कि ड्यूरिंग दैट वो जो पीरियड रहेगा जिसमें ये टेपरिंग होती है, तो शायद थोड़ा सा सोना शायद थोड़ा सा महंगा हो जाए ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिस टाइम पे ये टेपरिंग होगी। और कितनी स्पीड से होती है देखिए, एक उन्होंने कहा है, पर उनके वहां पे डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं, तो देखते हैं कितने टाइम में होती है। बट इट्स अ रेड फ्लैग और प्रोबेबिलिटी करेक्शन की बढ़ जाएगी इमर्जिंग मार्केट में, इंक्लूडिंग इंडिया। जी 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 जी। Swiss brokerage Credit Suisse has lowered its nominal GDP growth forecast by 150 to 300 basis points to 13 to 14%, but expects a stronger recovery in the second half as it sees the lockdowns having limited impact on tax collections. Credit Suisse says our macro strategy team expects the overall impact on the pandemic restrictions on GDP to be about 150 basis points in base case scenario. Even if we assume a 300 basis points impact if statewide restrictions prolonged, nominal GDP growth in financial year 22 will be around 13 to 14%.
Credit Suisse's optimism is based mostly on limited impact on tax collection and other revenue avenues of government, driven by good recovery in second half, albeit lower than what had anticipated before the second wave and pent-up demand. संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे राजीव हम इस खबर पर, इन्होंने जो संशोधन किया है अपने अनुमान में उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि वो शायद जो पिछली बार हुआ, जो पेंटअप डिमांड थी वो बहुत एकदम बढ़ के इकट्ठी से आई थी। मेरी उम्मीद है कि हाँ, कि जैसे ही जो एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न्ड है, पिछले लॉकडाउन से काफी कम है, तो इतना ज्यादा कोई डिक्लाइन नहीं होगा। और जैसे ही खुलेगा तो पिछली बार का एग्जाम्पल ही मुझे लगता है रिपीट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इन दी कंजम्पशन, पर शायद उतना ज्यादा नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था एकदम पेंटअप डिमांड, बिकॉज वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। इसमें इस बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है बहुत ज्यादा, तो प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन है ये रिपोर्ट। ओनली थिंग इज कि ये जो कोविड का जो असर है ये कितने कब खत्म होता है। अगर ये और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता गया तो शायद थोड़ा सा आई थिंक इन फोरकास्ट पे थोड़ा सा हिट हो सकता है। जी। Now let's take a look at the oil. But global crude prices fell today after diplomats said progress was made towards a deal to lift sanctions on Iran, which could boost crude supply. So Brent crude slipped $1.40 to trade at $65.26 a barrel. US crude oil slid $1.12 to $62.24 a barrel. राजीव, तेल के दाम को लेकर क्या अनुमान व्यक्त करना चाहेंगे आप? जो इसमें तेजी दिख रही थी वो अब नीचे की ओर आने लगी, तो हम उम्मीद करें कि क्या इसका गति आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि घटेंगे, बिकॉज ये एक्सेस मनी जो गया था पिछले कुछ दिनों में, जो एक्सेस सप्लाई जो गई थी, जैसे मैंने अभी बात हुई कि यूएस फेड की जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो अलग अलग एसेट क्लास में जाती है, तो वो जब थोड़ी सी वापस निकलेगी तो घट सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप उसको फिर वही 30, 35 या $40 के भाव पे आपको ऑयल, अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपको वो ऐसा दिखे। मुझे नहीं लगता कि हाँ, थोड़ा रहेगा 50-55 की रेंज में और 70 ऊपर में, इसी रेंज में काफी टाइम तक मुझे उम्मीद है। आइए चलें सर्राफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 237 रुपए बढ़ा 47,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर चांदी 153 रुपए उछलकर 71,421 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ है, $1,874 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी $27.80 प्रति औंस के स्तर पर बनी रही। राजीव, यहाँ पर हम सोने पर आपकी यानी आपकी जो अभिरुचि है वो समझना चाहेंगे। एक व्यक्ति यदि कह लें कि अपने पोर्टफोलियो में यदि सोना रखना चाहे तो उसे कितना रखना चाहिए? बहुत संक्षिप्त में। देखिए, ये संक्षिप्त में जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैंने जैसा कहा कि अगर टेपर टेंट्रम ये एक्चुअली में होते हैं तो कुछ तेजी हम देख सकते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग नहीं है, तो गोल्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, हैज टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। जी जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. At the stock markets, Sensex loses 338 points, Nifty drops 124 points, Rupee gains 7 paise against the dollar. Swiss brokerage Credit Suisse lowers India's nominal GDP growth forecast by 150 to 300 points to 13 to 14% for the current financial year. And Brent crude oil futures slip $1.40 to $65.26 a barrel. And on that note, it's time for myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak to bid adieu. Namaskar.